Hallelujah. Hallelujah. Well. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. सबको जय मसीह की. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Bless you, Lord Jesus. Bless you, King of glory. Hallelujah. Magnify your name. Magnify your name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, King of glory. 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 मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं. गाइए मेरे साथ. कोई नहीं. नारे लगाओ, आओ गाओ. नारे लगाओ, आओ गाओ. परम पिता की सना सना सना. परम पिता की सना. मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं. कोई नहीं. गाइए मेरे साथ. मुक्तिदाता बख्शनहारा. मुक्तिदाता बख्शनहारा. पालनहारा वही. पालनहारा वही. झुक झुक जाओ, शीस नवाओ. झुक झुक जाओ, शीस नवाओ. सबका सहारा वही. सबका सहारा वही. यीशु मसीह तेरे जैसा दूजा कोई नहीं. कोई नहीं. नारे लगाओ, आओ गाओ. नारे लगाओ, आओ गाओ. परम पिता की सना सना सना. परम पिता की सना. मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं. कोई नहीं. कोई नहीं. Hallelujah. Father, we bless your name, for there is none like you. There is none besides you. You alone do wonders in heaven above, upon the earth, beneath the earth. Your name is so magnanimous, so awesome. We lift up your name, for your name is name above every name. Your name is a respite. Your name is a stronghold. Your name is a mighty tower. Hallelujah. Your name is the pavilion of a soul. Lord, we find shelter. We find refuge. Your name becomes a hiding place, oh God. I invoke your name over your people that are gathering online, people that will gather later, people that will listen to the voice of your servant, and which is your voice, Lord, later on. I pray, Father, that your word will speak today in a very, very powerful way, that your word will come like a mighty hammer that shatters the stone, rock into little pieces, and your word will come like the balm of Gilead to heal and bring strength and divine comfort from above, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. May this fellowship that we are having online be anointed by your Spirit. May your people sense angels in this fellowship. May your people
experience the fire of your presence. Fire of your presence. And may your people, above all, see your face and see your glory. For we serve you, living God. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. आप सबको जय मसीह की. हालेलुया. मैं यीशु मसीह के नाम में आशा करता हूँ यू आर ऑल वेल एंड यू आर रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह में आप सभी आनंदित हैं और आप पवित्र आत्मा की कुव्वत से भरे हुए हैं. हालेलुया. मैं चाहता हूँ एक वचन निकालिए. प्रोवर्ब्स जिसे हम पंजाबी में कहोता कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नीति वचन. हालेलुया. नीति वचन की पुस्तक निकालिए और उसका 18 चैप्टर 18 चैप्टर निकालिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 18 और उसका 10 पढ़ेंगे. प्लीज़ आप लिखते भी जाइए ताकि दूसरे लोगों को वचन लिखा भी मिल जाए. हालेलुया. इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम देने लगा इन दिनों में. हालेलुया. प्रोवर्ब 18 एंड वर्स नंबर 10. नीति वचन लिख दीजिए बीच में. नीति वचन 18 का 10. हालेलुया. सुनिए यहोवा परमेश्वर की वाणी. यहाँ लिखा है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस रनeth into it. That's the original Hebrew translation. The name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth straight into the name of the Lord, into it and is safe. Hallelujah. यहोवा का नाम एक विशाल गढ़ है और धर्मी यहोवा के नाम के किले के बीच में घुस जाता है. The name of the Lord is a mighty, impregnable tower that no force of darkness can penetrate. And what the righteous does? Runs directly, barges straight into the tower, which is the name of the Lord. The righteous dwells inside the name of the Lord. And the name of the Lord is Yod He Vav He. Say after me. Yod He Vav He. Yod He Vav He. Righteous is Zadik, धर्मी. और वो क्या करता है? यहोवा के नाम में घुस जाता है. वी हैव अ वेरी पावरफुल वर्ड एंड गॉड इज गोइंग टू रियली ब्लेस यू विद दीज वर्ड्स. मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका हिब्रू में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. मे नॉट बी वेरी वेरी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट लेट मी जस्ट गिव अ शॉट. शेम याहुआ ऑज मिगडॉल जदिका रुट सगाब. सुनिए क्या लिखा है, कितना गहरा वचन है. शेम याहुआ, याहुआ या याहवे, योड हे वाव हे. शेम नाम, यहोवा का नाम क्या है? ओज. हिब्रू में ओज का मतलब स्ट्रेंथ, पावर, माइट, अथॉरिटी, ग्रेट बोल्डनेस. यहोवा का नाम क्या है? सामर्थी. आगे क्या है? मिगडॉल. मिगडॉल का मतलब टावर, टावर, कासल. हालेलुया. किला है, ऐसा किला है जिसको कोई भेद नहीं सकता. अभेद्य किला है यहोवा का नाम. किसका नाम? यहोवा, सृष्टि के रचिता का नाम, जिसका नाम है योड हे वाव हे. से आफ्टर मी. योड हे वाव हे. योड हे वाव हे. आपको मालूम यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं, सबसे जबरदस्त हाई प्रीस्टली प्रेयर जॉन 17 में यीशु मसीह कहते हैं, फादर फॉर आई हैव डिक्लेयर्ड योर नेम अनटू देम. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर? योड हे वाव हे. हालेलुया. योड हे वाव हे इज अ मिगडॉल, ऑज मिगडॉल, माइटी टावर है. और क्या करते हैं? क्या लिखा आगे? जदिका, धर्मी, रूट्स, दौड़ता है.
किसके अंदर? यहोवा के नाम के अंदर। यहोवा का नाम क्या है? और अगला वर्ड है सगाब। सगाब का मतलब इज डिफेंडेड फ्रॉम ऑल साइड। नो एनिमी, नो फोर्स ऑफ डार्कनेस, नो पेस्टिलेंस दैट डिस्ट्रॉयज एट नाइट, नो एरो दैट फ्लाइथ एट नोन टाइम, नो evil that lurks, no evil that stalks, no evil that aims at your disaster, no fiery dart can ever get you when you are hidden in the name of the Lord. जब आप यहोवा के नाम के अंदर छिप जाते हो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के नाम के अंदर छिपना। अब मैं आपको लेके चलता हूं, मेरे संग चलिए। परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा लाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको कहा कि बर्रे का, मेमने का लहू लगाओ। उन्होंने मेमने का लहू लगाया, घर के बाहर ताव का चिन्ह बनाया। मैं बार बार आपको बताता हूँ, ऐसे ऊपर लहू लगाया, साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये ताव बन जाता है। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द अलफ ताव, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। वो चिन्ह लगाते हैं और हर एक फर्स्ट बॉर्न को मारना था यहोवा ने, वेदर हिब्रू और द इजिप्शियन। लेकिन जिस घर पे लहू लगा था उसके पहलौठे महफूज रहे। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा पीशाक ये पर्व होगा। पीशाक जिसे पास ओवर कहते हैं। पीशाका मतलब मौत का दूत जंप कर जाएगा तुम्हारे घर के ऊपर से, ब्लड को देखेगा। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला। नियरली 3 मिलियन लोग थे वो, नियरली 3 मिलियन। जब वो गए थे वो 70 थे। 430 ईयर्स के टॉर्चर, ऑपरेशन, दुख, मुसीबतों के बावजूद भी यहोवा ने उन्हें मल्टीप्लाई किया। कितने बना दिया? नियरली 30 लाख। दुख थे, मुसीबतें थी, परेशानियां थी, दुष्ट राजा थे, शैतानी आत्माएं थी, उनके साथ दुराचार था, पॉलिटिकली उन लोगों को ऑस्ट्रेसाइज किया था, रिलीजियसली उनको टॉर्चर किया जाता था, सोशली दे वर ऑन द मार्जिन, देयर वेजेस वर नॉट पेड। उसके बावजूद हर तरह की बुराई उनके खिलाफ मिस्रियों ने की, फिर भी यहोवा ने उन्हें बढ़ाया। आपके हालात, आपके परिस्थितियां आपको बांध नहीं सकते। आपको अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करना है कि इस वजह से मैं पनप नहीं सका, इस वजह से मैं उठ नहीं सका, इस वजह से मैं सरफराज नहीं हो सका, इस वजह से मैं प्रॉस्पर नहीं हो सका। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, इफ गॉड इज विद यू, यू आर बाउंड टू प्रॉस्पर। अगर प्रभु आपके साथ है, आप फलवंत होंगे, आप आशीषित होंगे, आप ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं। प्रभु कहता है यू विल बी अबव एंड नेवर बीनीथ, यू विल बी द हेड एंड नॉट द टेल। तो सिर होगा, पूछ नहीं होगा। आपको मालूम, एक भैंस की पूछ कुछ भी नहीं करती। भैंस जब बैठ जाती है ना गोबर करके गारे में गंदी जगह, तो पूछ सिर्फ मक्खियां हिलाती है, मक्खी मच्छर दूर रखती है। ये हेड जो होता है, यहां डिसीजन लिए जाते हैं। प्रभु कहता है तू हेड होगा, यू विल बी इन द ड्राइवर सीट, यू विल बी द मूवर एंड शेकर, यू विल बी द थिंक टैंक। अगर मैं तेरे साथ हूं, अगर प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। यहोवा ने फलवंत किया। उनके 400 साल की मेहनत उन्होंने नहीं दी, एक रात में यहोवा ने दिलवा दी। आपको मालूम, उनके बच्चों को, उनके लड़कों को मारता था फिरौन। यहोवा ने फिरौन का पहलौठा मारा। यहोवा ने सारे मिस्र के पहलौठे मारे। He avenged on the blood of those little innocent lives that Pharaoh used to butcher, because he was afraid that the Jews will grow up and will become a mighty force, and time will come that they will enslave the Egyptians. यहोवा ने बदला लिया, निकाल लाया यहोवा। उन्होंने मिस्र को लूटा, सोना चांदी हीरे मोती सब लेके निकल गए। और इस्राएली लोग जा रहे हैं। वचन में लिखा है उनके आगे बादल चलता था, जलाल का बादल, रात को आग का खंबा। वचन में लिखा है एक चट्टान उड़ के उनके संग चलती थी, मिस्टीरियस रॉक। वो चट्टान उन्हें पानी पिलाती थी। प्रेरित पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय में, कहता वो चट्टान कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह था। वचन में लिखा परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोलता था और मन्ना बरसाता था। वो पर्ल्स की तरह ऐसे पैलेट्स, छोटी छोटी गोलियां गिरती थी स्वर्ग से। तो जब जूस ने देखा तो उन्होंने कहा, वर्ड प्ले है वहां पे, मन्ना, व्हाट इज दिस? तो उसका नाम पड़ गया व्हाट इज दिस, अर्थात मन्ना।
वो होलसम न्यूट्रिशियस डाइट थी, उसके अंदर सब कुछ था जो बॉडी के लिए चाहिए था। साम 78 वर्स नंबर 25 में लिखा है, दैट वॉज द फूड ऑफ द एंजल्स। ज़बूर 78 के 25 वचन में लिखा है, वो खाना जो उन्होंने खाया वो स्वर्गदूतों का खाना था। दे वर फेड बाय हेवन एंड दे वर लेड बाय हेवन। द क्लाउड, हेवनली क्लाउड यूज्ड टू लीड देम। वो निकल आए, लेकिन क्या हुआ? वचन में लिखा है कि वो पहुंच गए एक समुंदर के पास। हालेलुया। कैसा समुंदर है? लाल समुंदर, उसका रंग लाल है, कोरल रीफ है उसके अंदर, रेड कलर के, सॉइल भी रेड है। तो रेड समुंदर के पास पहुंच गए और इसराइली अक्सर कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। इतनी बड़ी यहोवा की कुदरत देख के थोड़े समय में फिर कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे। तो पढ़िए यहाँ पे 14 अध्याय निकालिए, निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर नंबर 14। और मूसा को कहते हैं, व्हाई डिड यू ब्रिंग अस हियर टू डाई? क्योंकि उनको फिराउन के घोड़ों की आवाज़, रथों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वचन में लिखा है, मैंने आपको पहले बताया था कि ऋषिफ नाम का एक देवता है, बाइबल में उसका नाम है ऋषिफ। वो फर्स्ट जो प्रकाशित वाक्य के 4 घोड़े हैं, पहला वाइट जो घोड़ा है उसका सवार है ऋषिफ। अंडरवर्ल्ड का गॉड है, वॉचर है अंडरवर्ल्ड का, गेट कीपर है नेदरवर्ल्ड का। उस देवता को अमीनोटॉप द सेकंड, जो फिराउन था मिस्र का, जिस समय मूसा बवाएं लेकर आ रहा था इजराइल मिस्रियों के ऊपर, अमीनोटॉप द सेकंड, उसने ऋषिफ को अपना देवता बनाया था और उसकी पूजा मिस्र से करवाता था, क्योंकि ऋषिफ जो था वो चैरियट को लेके जाने वाला है। सुमेरियन अकेडियन लोग मानते थे कि सन जब निकलता है उसके आगे हॉर्सेस जुते होते हैं और उन हॉर्सेस को आगे लेके जाने वाला सारथी ऋषिफ है। तो ऋषिफ की पूजा करता था मीनोटॉप, और वचन में लिखा है उसका मन बदल गया। मैंने आपको बताया था, पहले उसने अपने हार्ट को हार्ड किया, फिर यहोवा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। मैंने आपको इसकी टीचिंग दी है, बड़ी जबरदस्त टीचिंग है वो। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि वो अपने 600 चुने हुए रथ लेके, 600, और उन रथों के ऊपर जो सवार होते थे वो इतने जबरदस्त धनुर्धारी थे, आर्चर, कि घोड़े की, उनके आगे बहुत सारे घोड़े लगे होते थे रथों में, उनको मुंह में रखते थे रकाब को और ऐसे तीर चलाते थे, वो चीर के निकल जाता था। इतने जबरदस्त आर्चर थे वो लोग। क्यों? फिराउन के रथ को खुद चलाने वाला अंडरवर्ल्ड का, नेदरवर्ल्ड का गेट कीपर था ऋषिफ, वो देवता जो युद्ध करने के लिए, फिराउन उसे यहोवा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए लेकर आया। आपको मालूम फिराउन ने अपने घमंड में कहा क्या था? आप पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय का 2 वचन। वो मूसा को 3 बार कहता है ये बात, कौन है यहोवा? मैं उसे नहीं जानता, ना मैं उसके लोगों को जाने दूंगा। हू इज याहवे? यहोवा को ललकारा उसने। कौन है यहोवा? यहोवा जो सृष्टि का रचिता है, ब्रह्मांड का मालिक है, तंबू की तरह ताना है उसने इस ब्रह्मांड को, खरबों गुना खरबों स्टार्स के साथ इसका श्रृंगार किया। अभी तक विज्ञान ढूंढ नहीं पाया, इतनी मिल्की वेज हैं। एक एक मिल्की वेज में अब विज्ञान कहता है ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मे बी जिलियंस। ऐसी मिल्की वेज हैं जिनकी रोशनी पृथ्वी को भी छू नहीं पाई। ह्यूज जाइगेंटिक यूनिवर्स यहोवा ने बनाया, महाप्रतापी सृष्टि का रचिता परमेश्वर। उसे एक मूर्ख इंसान कहता, हु इज याहवे? यहोवा ने उसके चैलेंज को स्वीकार किया, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। भाई और बहनों, यहोवा के चरणों में विश जाना, लेट जाना सबसे बड़ी बात है मनुष्य के लिए। उसकी शरण में आ जाए। वो दयालु है, वो करुणामयी है। वो अगर आपके साथ वाचा बांधेगा, आपकी 1000 पीढ़ियों को आशीष देगा। तो उसने कहा, अनटिल 1000 जनरेशन आई विल कीप माई कवनेंट। बट फेरो डिफाइड गॉड। तो वो 600 रथ लेके निकला, चुने हुए रथ थे, उनके व्हील्स बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत
जबरदस्त आर्चर चले उसके साथ, घोड़सवार चले, रथ पे चले और घोड़सवार चले, और उन्होंने कहा हम जाके उनको वापस लेके आएंगे, वो फ्री की हमारे स्लेव हैं, वी कैंट अफोर्ड टू लीव देम। शैतान फिर घुस गया उसके अंदर। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे मैं इसका 13 वचन पढ़ूंगा। निर्गमन कूच की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ता हूँ। एंड मोसेस सेड अनटू द पीपल, फियर ye नॉट, स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। ये गीत गाते हैं लोग, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अगर आप प्रभु की इच्छा में हैं, प्रभु आपको निकाल के लेके जा रहा है और प्रभु ने वादा किया, प्रभु ने इनिशिएटिव लिया है, तब चुपचाप खड़े रहिए। अगर आपके जीवन में पाप है, अधर्म है, तो उसके चरणों में गिर जाइए, क्षमा मांग लीजिए, चुपचाप मत रहिए, पुकारिए उसको। हालेलुया। तो क्या कहता है यहां पे लिखा है, स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड विच ही विल शू टू यू टुडे, फॉर द इजिप्शियंस whom ye have seen today, ye shall see them again no more। इस फिराउन को और फिराउन की सेना को जिसे तुम देख रहे हो, फिर नहीं देखोगे, मूसा ने कहा। और आगे क्या लिखा, द लॉर्ड शैल फाइट फॉर यू एंड ई शैल होल्ड योर पीस। कौन लड़ेगा? यहोवा। अगर आपका जीवन यहोवा के संग जुड़ा है, अगर यहोवा के साथ आपकी बातचीत है, तो लड़ेगा वो आपके लिए, वरना नहीं लड़ेगा। हालेलुया। और क्या लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोसेस, Wherefore criest thou unto me, speak unto the children of Yashrael, हिब्रू में बोलेंगे यशरेल या इज़राइल, that they may go forward। प्रभु क्या कहता है? आगे बढ़ो। प्रभु कभी नहीं कहेगा आपको पीछे हटो, प्रभु हमेशा कहेगा आगे बढ़ो। डेविड लिविंगस्टन एक बहुत अजीम खुदा का बंदा था, मिशनरी टू अफ्रीका। उसने कहा, आई विल गो एनीवेयर प्रोवाइडेड इट इज़ फॉरवर्ड। मैं कहीं भी जाऊंगा अगर ये आगे जाना है तो। हालेलुया। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, बट लिफ्ट दाओ अप दाई रॉड एंड स्ट्रेच आउट दाइन हैंड ओवर द सी एंड डिवाइड इट। यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, अपनी उस रॉड को उठा, अपने हाथ को उठा और पानियों को काट डाल। हालेलुया। महासमुद्र को फाड़ दे। हालेलुया। सम पीपल आर सेइंग नो नेटवर्क। Is the network okay? I think from my side it's okay. Hallelujah. और आगे क्या लिखा है, and I behold I will harden the hearts of the Egyptians and they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh and upon all his host, upon his chariot and upon his horsemen। प्रभु कहता है मैं अपने नाम को सम्मान लूंगा फिराउन से, फिराउन के रथ चलाने वालों से, फिराउन के घोड़सवारों से, क्योंकि उसने मेरे नाम की शान को चुनौती दी है। हालेलुया। तो क्या लिखा है 19 वचन पढ़िए, बहुत जबरदस्त वचन है, ध्यान से पढ़िए। एंड द एंजल ऑफ गॉड विच वेंट बिफोर द कैंप ऑफ इजराइल रिमूव्ड एंड वेंट बिहाइंड देम, एंड द पिलर ऑफ द क्लाउड वेंट फ्रॉम बिफोर देयर फेस एंड स्टूड बिहाइंड देम। इसराइलियों के आगे आगे जलाल का बादल चल रहा था, पीछे फिराउन आ रहा है अपनी सेना को लेके फिर से पकड़ने के लिए। आगे समुंदर है, पीछे दुश्मन आ रहा है। यहोवा ने कहा मैं तुम्हारे लिए आज लड़ूंगा, और फिराउन और उसकी सेना आज मेरे नाम की महिमा देखेगी। हालेलुया। और वचन में लिखा है यहोवा का एंजल एक महाप्रतापी दूत था जो आगे आगे चलता था, वो दूत आगे से पीछे चला गया। और लिखा है जलाल का पिलर ऑफ क्लाउड वेंट फ्रॉम बिफोर देयर फेस एंड स्टूड बिहाइंड देम। जलाल का बादल जो आगे था पीछे चला गया, और जो दूत था वो आगे से यूं घूमा और पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। किसको देख रहा है? एंजल, फरिश्ता, वैरी को देख रहा है, दुश्मन को। जलाल का बादल किधर चला गया? पीछे। इसराइली प्रजा जो 3 मिलियन के करीब है, 30 लाख के करीब होगी, 28 लाख से तो ज़्यादा है अगर पूरी कैलकुलेशन करेंगे। इजरायली प्रजा इस तरफ खड़ी है लाल समुंदर के इस शोर पे,
पीछे दुश्मन आ रहा है, आगे से यहोवा का बलि दूत पीछे जाके दुश्मन की सेना के सामने खड़ा हो गया, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता हुआ, और जलाल का बादल पीछे चला गया। हालेलुया। और क्या लिखा है? एंड इट केम बिटवीन द कैंप ऑफ द इजिप्शियन एंड द कैंप ऑफ इजराइल। इसराइलियों के खेमे और दुश्मन दोनों के खेमे के बीच में जाके कौन खड़ा हो गया? खुदा का दूत और खुदा का जलाल। परमेश्वर का दूत आपके शत्रुओं के बीच में, शत्रुओं के खेमे में जा रहा है बदला लेने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, धर्मी लोगों के लिए क्रॉस ओवर हो रहा है, जो प्रभु के संग पवित्र जीवन जी रहे हैं, नेक चाल चल रहे हैं, धर्मी जीवन जी रहे हैं, बनावटी जी, इधर मखौटा नहीं पहना हुआ है, एक जीवन है, समझ रहे हैं आप? पवित्र जीवन। रात को मोबाइल फोन पे गंदी फिल्में नहीं देखना, गंदी औरतों की तस्वीरें नहीं देखना, एक जीवन, पवित्र जीवन प्रभु के लिए जो जी रहे हैं, उनके आगे आगे दूत चलता है। पीछे से दुश्मन आ रहा है, दूत आगे से पलट के पीछे जा रहा है वैरी से बदला लेने के लिए, और जलाल जो यहोवा का आपके आगे है वो तेज पीछे जा रहा है। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है एंड इट केम बिटवीन द कैंप ऑफ द इजिप्शियन एंड द कैंप ऑफ इजराइल एंड इट वॉज ए क्लाउड एंड डार्कनेस टू देम। जलाल इजरायलियों को रोशनी दे रहा है, लेकिन वैरियों को क्या दे रहा है? अंधेरा। अंधेरे के लिए शब्द है होसेक, ऐसा अंधेरा जिसमें एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। देख रहे हैं आप प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु अपने एंजल को क्रॉस ओवर करवा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, इस पैंडेमिक के अंदर आपको बचा के रखेगा, अगर आप वाचा का जीवन जी रहे हैं प्रभु के साथ, अगर आपकी लाइफ कवनेंटेड है यहोवा के साथ। ही विल प्रोटेक्ट यू, ही विल प्रोटेक्ट एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू, ही विल प्रोटेक्ट योर प्रॉस्पेरिटी, ऑल दैट बिलोंग टू यू। उसका दूत पीछे जा रहा है दुश्मनों को जवाब देने के लिए, उसके जलाल का बादल दुश्मनों के लिए अंधेरा बनने जा रहा है। परमेश्वर का समय आ रहा है टू एवेंज ऑन योर एनिमीज। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर का समय आ रहा है। यहां पे लिखा है डार्कनेस टू देम एट इट गेव लाइट बाय नाइट टू दीज सो दैट वन केम नॉट नियर टू दी अदर दैट नाइट। उनके लिए इतना अंधेरा बन गया जलाल का बादल, इसराइलियों के लिए रोशनी। इस तरफ अंधेरा है, इस तरफ ऐसे करेगा प्रभु, और प्रभु का दूत खड़ा है वहां पे, संहार कर देगा उनका अगर वो यहोवा के लोगों को छुएंगे। उस रात ऐसा हुआ। और क्या लिखा है? एंड मोजेस स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड ओवर द सी। तब मूसा ने समुद्र के ऊपर अपने हाथ को उठाया। समुद्र है याम। आपको मालूम, मैंने बताया था, तियामात एक देवता है पानियों का, प्राइमोडियल स्पिरिट है। जेनेसिस चैप्टर 1-2 के अंदर वो डीमंस हैं, बदरुएं, तुहु वाहु, वो डेमोनिक एंटिटीज है। तुहु वाहु, द अर्थ बिकेम वॉइड एंड फॉर्मलेस, दैट्स अ डेमोनिक एंटिटी। वहां पे 3 डेमोनिक स्पिरिट्स हैं। तियामात वर्ड है, टहोम हिब्रू वर्ड है, डीप, जो डीप के ऊपर स्पिरिट मंडला रहा है, वो हिब्रू वर्ड है टहोम, जो तियामात एक पानियों का देवता है, गॉड ऑफ द वाटर्स, प्राइमोडियल स्पिरिट जो कयास पैदा कर रही है, उसके खिलाफ युद्ध कर रहा था यहोवा का पवित्र आत्मा। अब याम जो है, वो जो पानियों की मरीन स्पिरिट्स हैं, प्राइमोडियल स्पिरिट है, उसके ऊपर क्या जा रहा है? यहोवा परमेश्वर का। ये यहोवा की रॉड है, मूसा की नहीं है। यहोवा का हाथ जाने वाला है उन स्पिरिट्स के ऊपर जिन्होंने पानी की टेरिटोरीज को पोजेस किया हुआ है। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया परमेश्वर का नाम है योड, हे वाव हे। योड होता है ऐसे हाथ, हे होता है विंडो, ऐसे। मैं आपको क्या करूं, कैसे दिखाऊं? ये देखिए मेरे नोट के अंदर, ये देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है, जिन्हें वालों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, बहुत छोटा है,
ये जो है ये यहोवा का नाम है परमेश्वर का, योड हे वाव हे। हे एक डोर है, दरवाज़ा है। योड हाथ है, हे ऐसे जैसे आपके फ़ोन की शेप है इस तरह का है। हे एक डोर है, एक दरवाज़ा है। योड हाथ, डोर दरवाज़ा, जिसका मतलब ऐसे देखना या डोर। वाव जो है वो ऐसे कील है, जैसे कील होती है, और फिर हे देखना। मूसा ने पूछा था आपका नाम क्या है प्रभु जी? प्रभु ने बताया योड हे वाव हे। अगर मेरा नाम जानना है तो उस हाथ को देखना जिसके अंदर कील ठुकी हुई है, कील का निशान है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में दो दरवाजे हैं, योड हे एक दरवाजा, वाव हे दूसरा दरवाजा। दो दरवाजे हैं। आपको मालूम लाल समुंदर बंद है, इधर भी पानी है इधर भी पानी है। इसराइली पैनिक कर रहे हैं, डर रहे हैं, शत्रु हमें फिर गुलाम बना के ले जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा अपने दास को? पानियों की बदरुओं के ऊपर रोकने वाली हर शैतानी आत्मा, पीछे रिशेफ आ रहा है, अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर रथ लेके, फिराउन के अंदर शैतान की गंदी आत्माएं हैं। फैरो इज अ टाइप ऑफ सेटन। इसराइलियों को यहोवा के लोगों के विरुद्ध आ रहे हैं ऐसे मार्च करते हुए। इधर इसराइल की प्रजा खड़ी है, दूत इधर पलट आया, दुश्मन के सामने आके खड़ा हो गया। परमेश्वर का जलाल दुश्मनों के लिए अंधेरा बन गया। तब मूसा उस रॉड को उठाता। आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा? वचन में लिखा, ही कॉल्ड अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। सम मिस्टिक जूस बिलीव दैट ही प्रोनाउंस 72 नेम्स ऑफ गॉड, क्योंकि इन 3 वचन को अगर आप एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हो तो 72 नेम्स ऑफ गॉड निकलते हैं। कुछ कबलिस्टिक लोग जो हैं वो 72 एंजल्स बोलते हैं उन्हें। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मूसा ने लिया लाठी को और उठाया याम के ऊपर, हालेलुया, मरीन स्पिरिट्स, तियामात के ऊपर, समुंदर के देवता के ऊपर। तो क्या हुआ? पानी बंद है इस तरफ भी उस तरफ भी। आकाश और पृथ्वी का रचिता यहोवा परमेश्वर, उसने क्या किया? उसने वचन में लिखा हवा भेजी, स्ट्रॉन्ग विंड। वर्ड है स्ट्रॉन्ग विंड के लिए रूहाक, रूहा। और यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? उसके नाम में 2 दरवाजे हैं। हे एक दरवाजा यहोवा परमेश्वर ने इस तरफ लगाया जिधर इसराइली खड़े हैं, दूसरा दरवाजा दूसरी तरफ समुंदर के लगा दिया, और ऐसे नाम का दरवाजा लगाया और उसके बीच में से रूहा गया खुदा का। 2 दरवाजों के बीच में से टनल तैयार कर दी, और इसराइली लोग किसके अंदर घुस गए? समुंदर के अंदर। लेकिन इसराइली लोग आपको मालूम किस में घुसे? यहोवा के नाम में घुस गए, क्योंकि यहोवा के नाम में 2 दरवाजे, एक इस तरफ हे और एक इस तरफ है। दे एंटर्ड राइट इनटू द नेम ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है शैम यहुआ ओज मिगडॉल जदिका रोज सगाब। यहोवा का नाम एक ऐसा किला है जिसके अंदर शत्रु की मौत होगी अगर शत्रु घुसेगा। इसराइली लोग उसके अंदर घुस गए, और वचन में क्या लिखा है? पानी दीवार बन के खड़ा हो गया। आपके जीवन में अगर आपको दीवारें दीवारें दिख रही हैं, यहोवा अपने नाम का दरवाजा आपके जीवन में खोलेगा। वो खुद दरवाजा है, हालेलुया। उसका नाम पुकारिए, वो खुद दरवाजा है। जीसस सेड आई एम द डोर। ही विल नॉट मेक द डोर, ही इज द डोर। ही विल नॉट क्रिएट अ वे, he says I am the way. So 2 doors, God supernaturally opened up 2 doors on either side of the Red Sea. Hey, his name, 2 hay came on this side and on the other side, and the entire congregation of the children of Israel, they barged through into the name of the Lord. Proverbs 18 verse number 10. The name of the Lord is a strong tower. Hallelujah. अब प्रभु ने कहा कि मैं फिराउन से, फिराउन के घुड़सवारों से, फिराउन के रथ सवारों से, फिराउन के योद्धाओं से अपने नाम की महिमा लूंगा। उसने कहा था आई डू नॉट नो हु याहवे इज। फिराउन ने अहंकार में कहा कौन याहवे मैं नहीं जानता। वचन में लिखा है यहोवा ने अपने नाम के 2 दरवाजे लगाए, उसकी प्रजा पानी के बीच में टनल बना दी यहोवा ने, पानी दीवार बन के खड़ा हुआ। मैंने बहुत साल पहले एक विजन देखा था कि इसराइली अपने गड्ढों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर, अपने खच्चरों के ऊपर काफिला जा रहा है उनका।
इसराइलियों के बच्चे, बूढ़े, जवान सब जा रहे हैं, प्रेग्नेंट वेमेन भी हैं, दे ऑल आर मार्चिंग इनटू द लैंड ऑफ प्रॉमिस। तो इसराइलियों के बच्चे क्या कर रहे हैं, पानी दीवार बन के खड़ा है, उसके बीच में मच्छियाँ आ रही हैं, वो ऐसे पोक कर रहे हैं सी क्रीचर्स को, एंड दे आर प्लेइंग एज दे आर पासिंग थ्रू। व्हाट ग्लोरियस एक्सोडस, व्हाट ग्लोरियस रिडेम्पशन, व्हाट ग्लोरियस ब्रेक थ्रू गॉड गेव देम। वो दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि 2 दरवाजे लगाए हैं खुदा ने, एक इस तरफ, एक इस तरफ। 2 doors गॉड क्रिएटेड। जब वो परली तरफ चले गए, शत्रु प्रिज्यूम्ड, आपको मालूम, प्रिजम्पशन इज नॉट फेथ। दे पास द रेड सी बाय फेथ, Hebrew 11 says, but Pharaoh and all his army came via presumption. They did not have genuine God kind faith, which is produced by the living word of God. They just presumed. So don't presume, don't make your assumptions. The Rhema word, the living word of God, will produce faith right inside. And when that little seed comes, seed of faith inside, it's going to germinate and grow up. उसको आपने नर्चर करना है। तो फिरौन जब बीच में आ गया अपने रथ घुड़सवारों को लेकर, पढ़ना आप पूरा, आप हैरान रह जाएंगे। हालेलुया। साम 106 के अंदर यहोवा परमेश्वर कहता, लिखा है वचन के अंदर, सामिस कहता है यहोवा ने समुद्र को झिड़का। हालेलुया। डांट लगाई यहोवा परमेश्वर ने समुद्र को, और फिरौन बीच में आ गया, और तब प्रभु ने क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 14 का एक्सोडस 14 का 25 वर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, 24 पढ़ता हूँ। एंड इट केम टू पास in the morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and the cloud, and troubled the host of the Egyptians, and took off their chariot wheels. स्वर्गदूतों ने उनके चैरियट के व्हील निकाल दिए। हालेलुया। That they drave them heavily, so that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for Lord fighteth for them against the Egyptian। और वो नाम लेते हैं उसका, यहोवा इसराइलियों के लिए लड़ रहा है। अब भाग के किधर जा सकते हैं, मिडवे हैं, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। तो क्या लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोसेस, स्ट्रेच आउट दाइन हैंड ओवर द सी, दैट द वाटर्स मे come again upon the Egyptians, upon their chariots and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength. When the morning appeared, the Egyptian fled against it, and the Lord overthrew the Egyptian in the midst of the sea. फिरौन के रथ और घोड़ों को यहोवा ने समुद्र के अंदर घुसा के मार डाला। हालेलुया। आपके लिए उसके नाम के दरवाजे हे आएंगे, आपके शत्रुओं का यहोवा न्याय करेगा। आपको मालूम, हमारा पिता इब्राहिम वो मूर्ति पूजक था, प्रभु को नहीं जानता था। प्रभु ने उसे दर्शन दिया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 2 वचन पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा, बिफोर अ फादर एब्राम, उसका नाम था एब्राम, dwelt in the land of Mesopotamia, God of glory appeared unto him। जब हमारा पिता मेसोपोटामिया में रहता था, तब जलाली परमेश्वर ने उसे अपना दर्शन दिया। यीशु मसीह कहते हैं 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यहूदियों से, यहूदी धर्म के ठेकेदारों से, जूस से, तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मुझे देखना चाहा और उसने मुझे देखा। तो वो लोग उससे कहते हैं, तेरी आयु तो 50 साल की भी नहीं है, हमारे पुरखे इब्राहिम को मरे हुए 2000 साल हो गए। तो यीशु मसीह कहते हैं, बिफोर एब्राम आई एम। को मालूम उसने क्या कहा, उसने कहा आई एम, उसने कहा योड हे वाव हे। बिफोर एब्राम वॉज, योड हे वाव हे। उसने कहा बिफोर एब्राम वॉज, हाइया आशर हाइया। वही नाम लिया उसने, मैं यहोवा। हालेलुया। वो मालूम यीशु मसीह ने बता रहा था, मैं इटर्नल हूँ, मैं अभी नहीं आया मरियम की कोख में जन्म लेके, ये तो मेरी ह्यूमैनिटी की इंसेप्शन है। आई एम इटर्नल गॉड, आई एम एजलेस, आई एम द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड द अर्थ, आई एम द इटर्नल सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। मैं अनंत परमेश्वर का अनंत पुत्र हूँ, सदा से हूँ।
वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 10 वचन में, वहाँ लिखा ही वॉज इन द वर्ल्ड, वो संसार में था। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, उसने संसार को बनाया, बट द वर्ल्ड डिडंट नो हिम, पर संसार ने उसे नहीं जाना। 2000 साल पहले सिर्फ उसने मरियम की कोख में शरीर धारण किया है, आपके और मेरे प्रायश्चित के लिए, एक अति पवित्र बलिदान देने के लिए। वो अजन्मा है, वो अनंत है, वो अमोघ है, वो अनादि है, वो सृष्टि का रचिता है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। वो सामर्थी है, महाप्रतापी है, यशस्वी है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। आपको मालूम, इब्राम, उसका जो हमारे पिता का नाम पहले क्या था? अब्राम। अलफ बेथ रश मैम। मैम हिब्रू का वर्ड है। इसकी 2 फॉर्म होती हैं। जब मैम वर्ड किसी सेंटेंस के, किसी वर्ड के बीच में आता है तब उसकी शेप अलग होती है। अगर मैम किसी वर्ड के एंड में आता है तो उसे मैम सोफीत बोलते हैं। तो वो एक डब्बे की तरह बंद हो जाता है। जैसे एक डब्बा होता है ना, ऐसे बॉक्स बना लो आप, बंद बॉक्स, वो मैम हो जाता है। जो मैम जो है, मैम से पानी बनता है। मैम का मतलब पानी होता है। मैम, मम, हर भाषा में मम बच्चा बोलता है। और स्वर्ग को बाइबल में हिब्रू में कहते हैं शमायम। मैम है शमायम, जहां पानी है, जीवन के जल के झरने हैं। शमायम का मतलब स्वर्ग, जहां जीवन के जल के झरने हैं। मैम है उसके अंदर। लेकिन इब्राम के नाम में मैम एंड में आता है, मैम सोफीत, अर्थात बंद है डब्बा। आपको मालूम, पुरुष के अंदर असली कोख है, जहां से सीड जाता है उसकी प्रोजनी के लिए। तो सारा जो है हमारी माता, वो ही अकेली बांझ नहीं है। हमारा बाप के अंदर भी मैम सोफीत लगा एंड में, उसकी भी कोख बंद है। और आपको मालूम, हमारी माता, उसका नाम है सराई, जिसका मतलब है प्रिंसेस। तो उसका नाम है शेनरेशवाब। शेनरेशवाब, सराई। तो वो प्रभु के पास आते हैं। और आपको मालूम, मैंने आपको वचन में बताया था, उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय में, तो सारा हमारे पिता अब्राम से, उस समय अब्राम है, वो सराई है, उसको सजेशन देती है कि हमारे औलाद नहीं है, मेरी नौकरानी है, हेगर से औलाद पैदा कर लो। उनके घर औलाद पैदा हो जाती है। 16 अध्याय जेनेसिस पढ़ेंगे, उसके एंड में, एंड की वर्स में लिखा है, एब्रम वॉज 83 व्हेन हेगर बोर हिम इश्माएल। 83 वर्ष का था, 75 वर्ष का था जब प्रभु के संग चला। 11 साल गुजर गए। 11 साल के बाद उसके बच्चा हो गया। आपको मालूम, ही वॉज नॉट द प्रॉमिस सीड, ही वॉज द सीड ऑफ कंपल्शन। कंपल्शन के कारण वो पैदा हुआ। जब आप निर्णय लेते हो दबाव में, वो बहुत डेंजरस निर्णय होते हैं। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे लीड करेगा। शैतान कभी लीड नहीं करता। सेटन इज नेवर अ लीडर। सेटन विल पुश यू टू डू समथिंग। शैतान आपके पीछे से आपको धक्का देगा कुछ काम करने के लिए, लेकिन प्रभु आपके आगे जाके आपको लीड करेगा। तो उनके घर औलाद पैदा हुई, 83 ईयर्स का था। लेकिन अगर 17 वर्ड्स पढ़ेंगे, 17 चैप्टर पढ़ेंगे, पहली वर्स में लिखा है, नाउ एब्राम इज 99 ईयर्स ओल्ड। 13 साल गुजर गए, यहोवा ने कोई बातचीत नहीं की इब्राम के साथ। तो खैर उस मैसेज में नहीं जाना चाहता। प्रभु उसे क्या कहता है? प्रभु कहता है, वॉक बिफोर मी। हिब्रू वर्ड है पनेम, मेरे चेहरे के आगे आगे चल, मेरे चेहरों के आगे आगे चल। फिर प्रभु क्या कहता है? और सिद्ध हो। हिब्रू वर्ड है तमीम, कामिल बन। मेरे चेहरों के आगे आगे चल, मेरे चेहरों का प्रकाश, मेरे चेहरों का रेवलेशन, मेरे चेहरों का नूर तुझे तमीम करेगा, सिद्ध करेगा। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु ने क्या किया? प्रभु के नाम में 2 हे हैं दरवाजे। सारा का नाम क्या है? सराई है। शिन रशवाब, बंद है कोख। तो परमेश्वर अपने नाम की हे लगा देता है। उसे कहता है अब तेरा नाम सराई नहीं, तेरा नाम सारा होगा। अब उसका नाम क्या बन गया? शिन रेशवाव हे, सारा। हे लगा दिया दरवाजा सारा के अंदर। सारा की कोख बंद थी, यहोवा पिता ने अपने नाम का एक दरवाजा उसके संग लगा दिया। और हमारे बाप इब्राहिम का नाम था अलफ बेथ रश मेम सोफीत।
यहोवा पिता ने अलफ बेथ रेश मेम सुफीत के साथ हे लगा दिया, उसको कहा तेरा नाम इब्राहिम होगा। एक दरवाजा सारा के संग, हमारी माँ के संग, साराई के संग जोड़ के उसे सारा कर दिया। दूसरा डोर यहोवा ने हमारे पिता अब्राम के साथ लगा के उसके इब्राहिम कर दिया। बंद कोख को खोल दिया, बंद दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। वो बंद दरवाजों को खोलने वाला है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। मैं परमेश्वर के आगे आशा रख के बैठा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। मासिव डोर्स यहोवा खोलने वाला है। उसका आत्मा बता रहा है कि बड़े डोर मैं तेरे लिए खोलने वाला हूँ, और मैं डोर जो खोलने वाला हूँ नो बॉडी कैन शट। डीमंस ने, बदरुओं ने, जेलसी के कारण अपने भाइयों ने कई डोर हमारे बंद करने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु कह रहा नॉट एनी मोर, आई एम ओपनिंग अप एन इफेक्चुअल डोर फॉर यू। हालेलुया। प्रभु आपके लिए डोर खोलने जा रहा है। एक नए सीजन के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके आगे आगे जाने वाला एंजल is going to turn back and look after your enemies. God is saying, I am going to answer your enemies and I am going to tell them who I am on your behalf. प्रभु कहता है मेरे नाम के अंदर छिप जाओ। हालेलुया। किसके अंदर छिप जाओ? मेरे नाम के अंदर। फिर से मैं आपको बताता हूँ, शेम, यहुआ, ऑज, मिगदाल, जदिका, रुट, सगा। हालेलुया। यहोवा का नाम एक बड़ा किला है। सादिक, धर्मी। कौन? धर्मी। तो लीजिए, मैं बार बार मैसेज देता हूँ, ये फॉल्स गॉस्पल प्रीच नहीं करता मैं, होल काउंसिल ऑफ गॉड आपको बता रहा हूँ। सादिक, धर्मी। हालेलुया। कौन? वचन में मैंने क्या बताया था आपको? Psalm 34:7 में, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड द राइचियस। जो यहोवा से डरते हैं, डरवैयों के इर्द गिर्द यहोवा का दूत बाड़ा बांधता है। आपको मालूम, मैंने बताया यशार शब्द का मतलब होता है, यशार का मतलब अपराइट। कल मैं आपको बता रहा था अय्यूब के विषय में, यशार सीधी लाइन पे चलने वाला बंदा, और जदिक राइचस, और यहुआ यारे यहोवा से डरने वाला। किससे डरने वाला? यहोवा से डरने वाला व्यक्ति। हालेलुया। आपके शत्रुओं को आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, यहोवा खुद जवाब देगा। वो आपकी आत्मिक कोख को खोलने जा रहा है ताकि आप फल लाओ। आपके जीवन को फलों से भरने जा रहा है यहोवा। हालेलुया। उसने हमारे बाप अब्राम में अपनी कोख, उसकी कोख खोली, दरवाज़ा लगा के अपने नाम का। हमारी माँ सराई के अंदर उसकी कोख खोली, अपने नाम का हे लगा के, डोर लगा के। आपके नाम के साथ हे लगाने जा रहा है यहोवा। आइए आंखें बंद करें। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। खुदावंद, हम तेरे नाम में अपने आप को छिपाते हैं। तेरा नाम किला है, तेरा नाम गढ़ है। खुदावंद, तू फिराउन को, जो हमारे जीवन में फिराउन है, और जो घुड़सवार हैं, जो रथों पे आ रहे हैं, ऋषभ, और खुदावंद वो तियामात जो बदरुएँ हैं, मरीन स्पिरिट हैं, प्राइमोडियल स्पिरिट हैं, जनरेशनल कर्सेज हैं जो हमारे पीछे, खुदावंद उनको तू जवाब देने जा रहा है। तू याम को फाड़ने जा रहा है, दो भाग करने जा रहा है। तो इस तरफ भी याम के समुंदर के दरवाज़ा खोलने जा रहा है, और दूसरी तरफ भी एक टनल बना के बीच में रुहाक घूमेगा और हमें निकाल के लेके जाएगा। खुदावंद, तेरा धन्यवाद। मैं तेरे इन लोगों के लिए, एक एक जन के लिए जिन्होंने प्रार्थना विनती भेजी है, भाई जॉन थॉमस ने भेजी है और कई लोगों ने भेजी प्रार्थना विनती है, उन सबको मैं तेरे आगे उठाता हूँ। खुदावंद प्रभु, तू इन प्रार्थना की विनतियों की ओर अपनी दृष्टि कर, एक एक प्रार्थना को अपने घर में सुन। खुदावंद, तेरे दूतों को रिलीज़ कर दे, स्वर्ग दूतों को रिलीज़ कर दे, तेरे नाम की महिमा हो। खुदावंद, ये जो सेवा हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसे खुदावंद 1000 टाइम आप मल्टीप्लाई करें, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इसे और एक्सटेंड करें, बढ़ाएं प्रभु, हज़ारों लोग आशीष पाएँ। भाई मलकियत गिल के घराने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हरजीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, दीपू मदार के लिए, राज बिन पलके के लिए, देविंदर सिंह भाई के लिए, बॉबी आर्ट के लिए, सुनीता गुरिया कंसावर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिली सैगल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, जॉन मसीह को आपके खुदावंद कीलछ दे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह, मंगाराम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम विनोद क्रिश्चियन, उनकी फैमिली कनाडा में, सबको आपके लहू में छिपाते हैं। सिस्टर देविंदर कुलार, उसके हस्बैंड के लिए इंग्लैंड में
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तेरे नाम की महिमा। शशि वर्मा के लिए दिल्ली में प्रभु आपके लहू में छिपाते हैं, प्रभदीप के घराने को, सिस्टर अंजू मसीह को ब्रिटेन में आपके लहू में छिपाते हैं खुदावंद, हालेलुया। प्रभु हरपाल सिंह के लिए आपकी आशीष खोलते हैं खुदावंद, तेरी बरकत साबी सुरजीत के ऊपर उतरे, सोनिया नार के ऊपर तेरे लहू की बरकत को मैं खोलता हूँ। स्टीफन साउजा भाई के लिए जो ब्रिटेन से प्रभु आपका लहू छिड़कते हैं, मनोहर लाल भाई दिल्ली से आपका खून छिड़कते हैं, भाई बॉबी आर्ट के ऊपर आपका लहू छिड़कते हैं खुदावंद, हालेलुया। प्रभु जी लिजा क्रिस्टी के लिए, उनके घराने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हिमाचल की कलीसिया के लोगों के लिए, रीना कुमारी के लिए दुआ करते हैं, भाई एरन हेनरी के लिए प्रभु मैं खास करके उनके घराने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इनके जीवन में हे डोर लगा दीजिए खुदावंद जी, दरवाज़ा खुल जाए। सुनीता कौर के लिए, उनके घराने के लिए प्रभु आशीष खोलते हैं, आपका खून उनके घराने के ऊपर छिड़कते हैं खुदावंद। एक एक जन को बरकत दें, जो बाद में इस मैसेज को सुनेंगे उनसे बोलिए, बातें कीजिए खुदावंद। बहुत सारे लोगों की आंखें खोलिए आपके सच्चे कलाम की ओर, आपके जिंदा नाम की महिमा करते हैं। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सब बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। सबको जय यीशु मसीह की, हालेलुया। अगर आपके दिल में प्रभु काम करे, आप कोई प्रभु के लिए बोलना चाहें तो यू कैन टेल मी, मैसेज कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की।